values, inspired by the path paved by the indefatigable spirit, hard work and success of Sri Shadalan Raji. We will continue to serve humanity. This selfless dedication will be the most fitting tribute to his enduring legacy. His vision will forever remain a guiding light, reminding us that true greatness lies uplifting others. Though he is not unless his values live on eternal, unshaken, and inspiring generations to come. Today we are here to celebrate milestones achieved, acknowledge the hard work, and look forward to a brighter future. So students are presenting School Report 2024 to 2025. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Good evening, namaskar. Today I, Manya, welcome all of you from bottom of my heart. I'm here to present our school annual report with my teammates Sonakshi, Kritika and Rashmita. It is a journey full of pride, adventures and achievements. Obviously, you will enjoy it and get a genuine reason behind sending your children to this institution where education is not a profession but a religion. Our school is not just an institution of academics, it is a temple of knowledge where discipline, creativity and values are nurtured along with education. Here students don't just learn to score marks, they learn to build character and shape the future. Maintaining the tradition of excellence, our students gave outstanding performance in board examinations. 2025 में जहां CBSE का ओवरऑल रिजल्ट 98.39% था, हमारे स्कूल का परिणाम 100% रहा। इस परीक्षा में लगभग 16 लाख विद्यार्थी बैठे और केवल 24,000 विद्यार्थियों को डिस्टिंक्शन प्राप्त हुई। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे स्कूल की 16 डिस्टिंक्शन 26 मेरिट और 45 फर्स्ट डिवीजन थी। 95% लेकर नॉन मेडिकल स्ट्रीम से टॉप। Yes, Rashmita, it was really outstanding performance, but still it cannot overshadow the result of class 10. The overall pass rate of CBSE in 10th board examination was 93.66% and we again achieved 100% results. Our students got 21 distinction, 34 merits and 61st division. Meghna topped the session with 96% marks. That's why our institution gives us many doctors, engineers, and higher-rank officers to the society. The main motto of our school is to provide holistic education of global standard. Recently, our passed-out students Palak got admission in NIT Kurukshetra, whereas Nishan, Pulkit, and Ankita are doing MBBS. There is remarkable achievement by Tushar as he got first rank in BSc Agriculture in HIU. Apart from them, there are many more in this line. You can see them on the screen. सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। जैसा आप सभी जानते हैं कि खेल भी जीवन में उतना ही आवश्यक है जितने की शिक्षा। इसलिए तो कहते हैं a sound body has a sound mind and health is wealth. इसीलिए हमारे स्कूल के विद्यार्थी केवल एकेडमिक्स में ही अग्रणी नहीं हैं, बल्कि खेल-कूद में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। Yes, you are right. As our students have performed well in district, state, and national level in different games. In under 19, Yash got gold medal at state level in
प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। Thank you to our students for presenting the school report too beautifully. Really, your clarity, teamwork, and confidence deserve every bit of appreciation. घायल तो यहाँ हर परिंदा है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो उड़ गया वही जिंदा है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, आज की शाम आपके नाम है।
I request everyone to give them a big hand. मेहनत का फल मीठा होता है and we start Aside, high aside. success with flying colors. Clapping should not stop. I request everyone to give them a big hand. Congratulations everyone. Okay, thank you. Now let's invite our brilliant class 10 toppers and their proud parents on stage. We have the board topper Meghna got 96%. Congratulations, give them a big hand. I request everyone to give them a big round of applause. When discipline meets determination, stars are born. And here are they. Next we have Parinita on stage with 95.4%. Congratulations. Netta School's top scorers prove that coffee and late night studies really do work. सर सामने हेलो सर आगे कर Clapping should not stop. Next we have Ishika with 95.4%. तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए. Give it up for Ishika. स्पेस 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 दे दो सर Congratulations to all the toppers. बेटा सामने सर सामने Next we have class 12 toppers. अरे यार On the stage is our former school captain Rumender Singh has scored and with 95%. Give it up for Rupinder Singh, who is full of energy, enthusiasm, and unstoppable spirit. आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए ताकि इनका हौसला भी बना रहे. Next we have Isha with 94.6%. Next on the stage we have Khushbu with 94.4%. Hard work, smart work, or Thodi's inspiration. That's how our toppers compiled the board. Next is the turn of Hansika with 94%. Congratulations to all the board toppers. I request all the parents to give them a big round of applause. Next we have Anuj with 93.2%. Give it up for Anuj. केक रहा जल्दी Next जल्दी in the series we have Bhagyalakshmi with 93%. Big congratulations to all our 12th grade achievers. Your success stories will keep motivating generations to come. Now, the time years in our Minda institution. We honor Mr. Sandeep Thapa, PhD Chemistry. For past 10 years, you have not just taught chemistry.
दीप जलाते हैं। हमारे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, उनको हम स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। Now I request our chief guest to kindly address the gathering. बोलने को है नहीं। गीता परिवार से बाई चांस पिछले 2-3 साल से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं पहले रिवाड़ी में डीसी था, तो वहाँ भी गीता परिवार ने CSR के तहत बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन और हेल्थ में। उसके बाद मैं नगर निगम मानेसर में था, वहाँ सुमन मैडम जी पैशन है इनको जिन बच्चों के लिए काम करने का, उनकी पढ़ाई का, सिलाई कढ़ाई का। कई बार इनसे मुलाकात हुई और हिसार में ये तीसरा मौका है। हिसार को बदला उनका अपना गांव है, और इस गांव में इतना अच्छा स्कूल जो चल रहा है, वास्तव में गांव के लोगों की और आसपास के एरिया के लोगों सौभाग्यशाली है कि ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी आपके बच्चों को एक अच्छा स्कूल मिलता है। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से मेरा परिवार का धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 10वीं क्लास तक बच्चा जैसा पढ़ जाता है, उसके बाद शायद वो पूरी जिंदगी वैसे ही रखता है। और जो स्टेज फियर है, स्टेज पे बोलने का डर है, ये बच्चों का निकल जाए तो उनकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। कई बार हमें बहुत सी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उसको किस तरह से बताएं सामने वाले को, एक्सप्रेस कैसे करें। ये स्टेज फियर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे अपने बचपन का एक अनुभव याद है। मेरी नरवाना से 10वीं करी थी, भाई होशियार बच्चों में था। तो एक बार हम इंटर स्कूल का कंपटीशन होता है, उसमें स्पीच देने के लिए मैं चला गया चंडीगढ़ की स्कूल चंडीगढ़ 7वीं 8वीं क्लास में। और वो स्पीच मैंने अच्छी तरह से रख रखी, पहले 2-3 जगह बोल चुका था, लेकिन करवाना से गया था। स्कूल चंडीगढ़ का माहौल बड़ा अलग था, बच्चे टाइम में अच्छा ड्रेस के कपड़े डाल रखे थे, हमारा गांव जैसा शहर था। तो मैं स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ, बीच में भूल गया, और इतना भूला कि बिना पूरी तरह आके अपनी सीट पर बैठे, और सीट पर बैठते ही मुझे दोबारा याद आ गया। मेरे टीचर ने पूछा जो साथ में गए थे क्या हुआ, मैंने पता नहीं चला क्या हुआ, वहाँ भूल गया था, याद आई। तो मुझे लगता है स्टेज फियर था या हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स था, जो आज के कार्यक्रम को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपके जो बच्चे हैं इनमें कम से कम ये स्टेज फियर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इनके अंदर आत्मविश्वास रहेगा अपनी बात को किस तरीके से कहने का, और ये जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को, बच्चों के माता पिता को, कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने सबको बनाया है, यदि मुझे बनाया है तो दूसरों को ही बनाया है। तो आप ये भी उम्मीद करते हो कि आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। मैं 7वीं क्लास में था, हाउस टेस्ट होते थे उन दिन, और उसके बाद वो चेक हो गए, पेपर वापस लिखते थे। तो इंग्लिश का मेरा पेपर था, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो आंसर शीट पे लिखने से पहले मैंने उनको लिख दिया चाहे पता नहीं लिख के पेपर कर दिया। पेपर करके जब चेक होकर वापस लिए तो मैं सोच
में से 96 नंबर थे, और लेकिन टीचर ने 96 - 5 इक्वल टू 91। 96 पे मैं पहले नंबर पे था, 91 पे 6-7 नंबर पे। मैंने टोटल चेक किया, 96 नंबर था, मैं टीचर के पास गया। मैंने कहा ये मेरे तो 96 आपने 91 कर दिए। बोले 5 मैंने काट दिए। मुझे क्यों काटे? बोले बताओ तुम्हें कौन पढ़ाता है? मैंने कहा आप पढ़ाते हो, टीचर्स पढ़ाते हैं। बोले पढ़ता कौन है? हम पढ़ते हैं। बोले बजरंग बली के बीच में कहाँ से आ गए? तो बोले कि तुझे ना तो अपने टीचर्स की काबिलियत पे विश्वास, ना तुझे अपनी मेहनत पे विश्वास, तू तो सारे नंबर बजरंग बली जी की चमचागिरी करते रहना। मुझे देखो 7वीं क्लास की बात है, यूँ तो ये शब्द याद होंगे, चमचागिरी कहा हमने। और फिर वो बोले कि तुझे ये गलत फहमी क्यों है कि बजरंग बली जी तेरे ऊपर विशेष कृपा करेंगे, सुरेश पे, नरेश पे, जय भगवान पे, दूसरों पे क्यों नहीं करेंगे? तो आत्मविश्वास की कमी बच्चों में नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं टीचर्स को भी कह रहा हूँ। एक 7वीं क्लास के पहले टीचर की बात देखो मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है। 40 साल से ज़्यादा उस बात को गुजर गए, और उसका मुझे सामना दोबारा करना पड़ा। IAS की तैयारी कर रहा था, 3 अटेम्प्ट मैंने ले लिए थे। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो 3 में से 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी सिलेक्शन दी। तो उसकी बात देने से पहले मेरी माँ अपने गुरु जी के पास गई, बोली जी कुछ उपाय बता दो, बेटा 2-3 नंबरों से DC लगता रह जाता है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को थोड़ी देर से कोशिश माता की पूजा करेंगे। माँ ने आके बताया कि ऐसे ऐसे कह रहे गुरु जी, थोड़ी देर पूजा कर लिया करें। मुझे लगा फिर भाई बजरंग बली जी और मेरे इंग्लिश के मास्टर भी आ रहे। और मैंने सोचा कि यदि मैंने पूजा कर ली और मेरी सिलेक्शन हो गई बाई चांस, तो क्या होगा? मेरा अपनी मेहनत से तो हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। उसके बाद नौकरी में जब कभी मेहनत करनी पड़ेगी तो नहीं करूँगा। बजरंग बली जी या संतोषी माता को कहूँगा कि बता दें कुछ भी, मान लिया तो के साथ फैसला करना है, फाइल ज़्यादा मोटी है, पढ़ी नहीं जा रही, मुझे पढ़ने की बजाय वैसे ही सपने में बता देना क्या फैसला करना है। तो इसलिए बच्चों में भी आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बच्चों के माँ बाप में भी आत्मविश्वास हो कि बच्चा जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। हर बच्चे में अलग तरह का टैलेंट होता है, हर बच्चा अलग होता है। किसी का मन साइंस पढ़ने में ज़्यादा हो सकता है, किसी का इतिहास पढ़ने में ज़्यादा हो सकता है, किसी का खेलने में ज़्यादा हो सकता है, किसी का म्यूजिक में हो सकता है। जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको उसी फील्ड में जाने तो बहुत अच्छा करेगा। आप थोपते में ज़बरदस्ती करेंगे कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, हो सकता है आपके दबाव में कम जाए। लेकिन यदि उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो वो सारी जिंदगी उस प्रोफेशन को ढोएगा, उस कैरियर को ढोएगा, उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मैंने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था और जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर के जो पेपर थे उसके सब्जेक्ट में फेल हो गए। पहली से लेके आप कहीं तो 13वीं क्लास तक पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी पेपर में फेल हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा इंटरेस्ट कम था।
लेकिन बाई चांस घर की परिस्थितियों के कारण मुझे वापस जाना पड़ा। नवादा से मैंने फिर BSc से ग्रेजुएशन करवा दिया और उसके बाद कंपटीशन के माध्यम से इस नौकरी में आया। यदि मैंने साइंस से कंपटीशन किया होता तो शायद नहीं आता, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मेरा वो नेचुरल जो इंटरेस्ट था वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा था। मुझे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता था और वो पढ़ने का मुझे मौका मिला तो मैंने अच्छा किया। आजकल तो और भी ज़्यादा फिर बच्चों के लिए खुले हैं, तो आप प्रेशर ना डालें बच्चे के ऊपर। कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे नंबर आएंगे वही बच्चे इंटेलिजेंस होती है। मेरे नंबर अच्छे थे, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि अच्छे नंबर आना इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है, अच्छे नंबर आना आपकी मेहनत की निशानी है। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए एक बात तो कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा। एडिसन का नाम आप लोगों में से कितने जरूर सुना होगा? थॉमस आल्वा एडिसन नाम सुना है लोगों ने? किसी ने इसने सुना ऊपर हाथ खड़े करके। एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उनसे पहले सारी दुनिया से दिए और मोमबत्ती में रहती थी। तो जब वो वैज्ञानिक बन चुके थे, अपने गांव में गए और उनका विचार था कि गाँव में जो घर है उसको बेच दिए। अकेले थे, माँ उनकी मर चुकी थी, पिता बहुत पहले मर चुके। तो गाँव में माँ का एक पेटी थी, संदूक जिसको बोलते हैं लोहे का, उसमें माँ का पुराना सामान था। उस सामान को निकालने लगे, उसमें भी लिफाफा था। उनको याद आया कि वो लिफाफा एडिसन ने स्कूल से लाके अपनी माँ को दिया था। मैं बात स्टाफ को भी कह रहा हूँ, टीचर्स को भी कह रहा हूँ। प्रिंसिपल ने, एडिसन के प्रिंसिपल ने वो लिफाफा एडिसन को दिया था जब वो स्कूल में था, 5वीं 6वीं क्लास में, और कहा था कि अपनी माँ को दे दें। उसने माँ को ला के दिया था। उसको याद आया कि जब माँ ने उस लिफाफे में से निकाल के चिट्ठी पढ़ी तो रोने लगी। एडिसन ने पूछा कि माँ क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो वो बोली, बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे प्रिंसिपल ने दिखाया कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, और ये इतना बुद्धिमान है कि मेरे स्कूल के टीचर इसको नहीं पढ़ा सकते, इसलिए इतने बुद्धिमान बच्चे का घर पे ही पढ़ाओ। इसलिए आज के बाद तो स्कूल में मत जाना, मैं पढ़ाऊँगी। और उस दिन के बाद एडिसन स्कूल में नहीं गया। तो वो चिट्ठी उस दिन एडिसन ने लिफाफे में से निकाल के पढ़ी, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, आपका बच्चा मूर्ख है, इसको जो पढ़ाते हैं कुछ समझ में नहीं आता, इसको स्कूल में रखने का कोई फायदा नहीं है। जिस बच्चे को स्कूल के प्रिंसिपल ने मंद बुद्धि कह दिया था, इडियट कह दिया था, वो इस दुनिया का इतना बड़ा वैज्ञानिक बना कि किसी ने पूरी दुनिया को रोशन किया। आज भी अंधेरा होते जो रोशनी होती है वो सारी एडिसन की वजह से है। तो इसलिए टीचर्स भी और पेरेंट्स भी नंबर ठीक है मिलने चाहिए, लेकिन बच्चों के दिमाग में बात बैठनी चाहिए, उनको समझ में आनी चाहिए, उनका दिमाग विकसित होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी बच्चे का नंबर कम भी है तो माँ बाप उसके प्रेशर ना डालें, बच्चे को सपोर्ट करें, वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाना। मैं दोबारा मेरा परिवार का और सारे स्टाफ का, सारे टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा स्कूल इतने ग्रामीण क्षेत्र
चला रखा है और उम्मीद करता हूँ कि स्कूल के बच्चे आगे चलकर जैसे अपना बाप भी कर रहा है, यहाँ से निकले बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बच्चे से मैं पूछ रहा था कहाँ पढ़ रहे हो, बोले दंकी वेंकटेश्वर स्कूल कॉलेज में। तो बहुत उज्जवल भविष्य आपके आसपास के एरिया के बच्चों का, तो इसमें मिंडा परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरे अच्छे कार्यक्रम के लिए और इतना अच्छा स्कूल और इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे चलाने के लिए इनका मैं दोबारा धन्यवाद करता हूँ और आप सबको नमस्कार। Thank you, sir. We are truly honored by your presence. Next, I would like to invite our former school captain, Rupender, to kindly come and grace this occasion with few words. Honorable Chief Guest, Mr. Ashok Kumar Garg, Respected Chairman, Sri Nilal Kumar Minda, Vice Chairman, Sri Ashok Kumar Minda, Suman Minda ma'am, Sarika Minda ma'am, and all other esteemed guests of Minda family, respected teachers, board principal, Dr. Matthew Burgess, School Director, Mr. M.C. Joshi, all the parents and each one present in this hall, a very good evening. This is Rupender Singh, the former school captain of Mobile Railway Minda Model School. Today you are witnessing the annual function of the school, and I am here on the stage to express my views and to thank each one of staff member, my teachers, my mentors, respected principal sir, the school director, who helped me to nourish my educational life, my confidence, my qualities, and my speaking skills. Today I want to pay a heartfelt thanks to each one of them who made me capable to stand and express my views in front of you. The trophy, the prize which I got, I want to dedicate that prize to all of them, because it's not only my hard work, it's all yours hard work who made me capable of this. A heartfelt thanks to each one of you. As a first year student in Thapar University, Patiala, and a student pilot, I never felt behind that I'm not capable of doing something. I always stood and asked myself, am I capable? Have I got that talent? The answer I got was, your talent has been nourished in your school life. You have been made, you have been trained to do everything you want. And that is all because the guidance, the love, I would say the unconditional love I got from the students, my classmates, my teachers, my principal, and each one of you. So, by concluding my speech, once again, thank you so much for making me capable of getting everything with my hard work and my talent and your support. And to all the students, I want to say one thing to all of you. Remember this thing, each time you are trying to do something new, you are trying to get your success, that this school can give you wings. Just you should have the guts to fly. Thank you so much. आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए सर्वहृदय धन्यवाद। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। प्रकृति ने 5 तत्वों से मनुष्य का निर्माण